आज हम इंडियन बैंक के Q4 FY25 रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। Total income for the period is 18,599 crore rupees versus 17,912 crore rupees quarter on quarter and 16,887 crore rupees year on year. Operating profit for the period was 5,018 crore rupees versus 4,749 crore rupees quarter on quarter and 4,304 crore rupees year on year. Provisions for the period fell down to 794 crore from 1,059 crore a quarter back. Net profit for the period is 2956 crore rupees versus 2852 crore rupees quarter on quarter and 2247 crore rupees year on year. तो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट में काफी अच्छा इंक्रीमेंट देखने को मिला है. EPS for the period is 21.95. Now we will move to the investor presentation. Performance highlights for Q4 FY25 business was up by 8.5%, deposits was up by 7%, advances was up by 10%. कासा रेशियो बैंक का 5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है. इसका मतलब बैंक को लो कॉस्ट डिपॉजिट्स मिल रहे हैं. क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो ऑफ द बैंक स्टूड एट 80%. बिजनेस ईयर ऑन ईयर रिटेल एग्रीकल्चर और MSME लोन्स मिला के 13% ईयर ऑन ईयर लोन्स में इंक्रीमेंट है. Asset quality, gross NPA stood at 3.09%. It was down by 86 BPS year on year and 17 BPS quarter on quarter. Net NPA के numbers भी काफी अच्छे लग रहे हैं. It stands at 0.19%, down 24 BPS year on year. तो बैंक का एसेट क्वालिटी काफी स्टेबल नजर आ रहा है. PCR of the bank stood at 98.1%. Cost of deposits for Q4 was 5.1%. Yield on asset for the quarter was 8.64%. Net interest margin was 3.48% for the quarter. For FY25, it was 3.51%, down 3 BPS year on year. Return on asset was 1.37%. Net interest income. So net interest for Q4 FY25 versus Q4 FY24 में 6% का इंक्रीमेंट देखने को मिला. ऑन एन ईयर बेसिस द ग्रोथ वाज 8%. ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इंक्रीमेंट था 17% का, जबकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इंक्रीमेंट था 38% का. नेट प्रॉफिट इंक्रीज्ड बाय 32% and 35% for FY25. Return on equity is around 21%. Over the past few years, we can see that बैंक का business continue अच्छी growth दिखा रहा है, तेजी से बढ़ रहा है. Profitability भी बैंक का from FY21 to FY25 is an increasing trend. Net interest income stands at 25,176 crore rupees for FY25. Capital adequacy ratio में improvement देखने को मिली है in FY25 and it stands at 17.94%. Asset quality, बैंक का asset quality FY21 में अच्छा नहीं था. ग्रॉस एनपीए था 9.85% और नेट एनपीए 3.37%. वहां से लेकर आज के डेट में जो ग्रॉस एनपीए 3.09% है और नेट एनपीए 0.19% है, तो हम कह सकते हैं कि एसेट क्वालिटी के फ्रंट पे बहुत इंप्रूवमेंट इंडियन बैंक ने शो किया है. डिपॉजिट्स इंक्रीज्ड बाय 7% ईयर ऑन ईयर. कासा डिपॉजिट्स में क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5% का इंक्रीमेंट था. एडवांसेस इंक्रीज्ड बाय 10% ईयर ऑन ईयर. Total business of the bank, that is deposits plus advances, increased by 8.5% year on year and 5% quarter on quarter. CASA ratio of the bank was 40.17%. कंपनी कॉर्पोरेट को अराउंड 36% ऑफ लोन बुक एक्सपोज्ड है कॉर्पोरेट की तरफ, जबकि रिटेल कॉन्स्टिट्यूट्स 22% ऑफ द लोन बुक. एग्रीकल्चर का कंपोनेंट है 25% का और MSME का कंपोनेंट है 17% का. नेट इंटरेस्ट इनकम ऑफ द पीरियड वाज 6,389 करोड़ रुपीस. ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर 0.4% का डिक्लाइन था और ईयर ऑन ईयर 6% का ग्रोथ था. ऑपरेटिंग प्रॉफिट फॉर द पीरियड वाज 5,019 करोड़ रुपीस. 5.7% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ था और 16% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को यहाँ पर हमें मिला. प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस 2,956 करोड़ रुपीस पे स्टैंड करता है, अब 31% ईयर ऑन ईयर एंड 3.6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर. Performance ratios. So some important performance ratios are yield on advances is 8.64%, cost of deposits is 5.1%, net interest margin is 3.37%. Earning per share for the year was 87.78, book value per share is 424 rupees. Net profit per employee is 29.51 lakhs. Asset quality. सो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में लगातार पिछले कुछ सालों में गिरावट देखने को मिली है. बैंक का प्रोविजन कवरेज रेशियो बढ़ा है ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स एंड स्लिपेज रेशियो स्टूड एट 1.11%, जबकि क्रेडिट रेशियो ऑन एन एनुअलाइज्ड बेसिस वाज 0.66%. Movement of NPAs. So gross NPA opening balance was 18,208 crore rupees.
Fresh slippages was 1,393 crore rupees versus 1,004 crore rupees in the past quarter. So total reductions were 1,461 crore rupees, जिसमें cash recovery था 641 और technical write-off था 554 crore rupees. So gross NPA closing balance हो जाएगा gross NPA opening balance plus total additions minus total reductions. Slippage ratio of the bank came at 1.09%. Credit cost for the year was 0.81%. फ्रेश स्लिपेजेस कहाँ से आ रहे हैं? सो मैक्सिमम स्लिपेजेस एग्रीकल्चर से आ रहे हैं। ये हम एसबीआई और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के रिजल्ट्स में भी हमने देखा था कि एग्रीकल्चर ही वो क्षेत्र है जहाँ से एनपीएस का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है अभी। सो बैंक नीड्स टू वॉच आउट देयर। सो दिस इज ऑल वी वांटेड टू डिस्कस रिगार्डिंग द रिजल्ट्स ऑफ इंडियन बैंक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेरीज हो तो हमें पिंग करें। धन्यवाद।